السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جانتے ہیں آپ، اس کا نام ہی اس میں تحریک آتا ہے، تو بہت سی تحریکیں شروع ہوئی ہیں 8 فروری کے بعد سے لے کر اب تک، لیکن وہ تحریکیں اپنا جو مقصد تھا اسے اچیو نہیں کر سکی۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بھی ایک تحریک چل رہی ہے، کاغذوں میں کم از کم ضرور چل رہی ہے، ٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ ضرور چل رہی ہے، اور وہ ہے وہ 90 دن کی تحریک جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ یہ پہلے یہ تحریک جو ہے وہ 5 اگست کے اوپر پیک کرنی تھی، لیکن اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے اس کے اوپر ایک 90 دن کا گرم پانی ڈال دیا تھا، تو وہ 90 دن جو ہیں وہ ابھی بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ اب کیا 90 دن کے اندر کوئی یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، اس کے اندر خان صاحب کے بیٹوں نے بھی آنا تھا، گنڈا پور صاحب نے پورے پاکستان سے لوگوں کو نکالنا تھا، اور جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج ہونے تھے، مظاہرے ہونے تھے، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اس تحریک کا کیا بنا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں مختلف محفلوں میں، تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کیا اس کے لیے کوئی مشکلات آنے والی ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا، کوئی پرابلم میں ہے، ان کی تحریک کس طرح چل رہی ہے؟ جہاں تحریکوں کی بات ہو رہی ہے تو موجودہ حکومت کی تحریک جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہے؟ اور ایک تیسرا سوال جو آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو موجودہ حکومت کی تحریک چل رہی ہے، یہ جب بھی جا کے ختم ہوگی تو کیا اگلا نمبر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا؟ یہ بھی ایک لفظ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ کیا بلاول بھٹو صاحب کسی نئی تحریک کو یا حکومت کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو بھی گئے ہیں یا نہیں؟ ان تمام تحریکوں کے اوپر یا مقاصد کے اوپر جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج 3 تحریکیں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافت کی 3 تحریکیں ہیں، ان سے رائے جانیں گے۔ ہمارے بہت ہی سینئر تجزیہ نگار اور کالم نگار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور رہنمائی کرتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، ارشاد بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ینگسٹر ابھرتے ہوئے صحافی رائے ثاقب صاحب، جو تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے، تحریک انصاف سے شروع کرتے ہیں، پھر دیگر تحریکوں کی طرف بھی جائیں گے۔ تحریک انصاف اس وقت جس سٹیٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اسمبلیوں سے، قائمہ کمیٹیوں سے استعفے، ضمنی انتخابات سے بائیکاٹ، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کل کافی مرہم رکھا اس ساری چیز کے اوپر، لیکن وہ جو اصل تحریک تھی خان صاحب کی رہائی کی، وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ اسلام آباد کیا بتا رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے اس پہ، اس حوالے سے؟ مختلف جس طرح آپ نے بتایا نا کہ کیا کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی، بالکل ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے کہ کچھ بھی نہیں چل رہا۔ کچھ بھی نہیں چل رہا؟ کچھ بھی نہیں چل رہا کہ آج جو ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب موجود تھے، اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہہ رہے تھے کہ اگر اگلے ہفتے آپ نہیں لگاتے تو بے شک 1 سال نہ لگائیں۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مثال دی کہ چونکہ توشہ خانہ بہت تیزی سے چل رہا ہے، اچھا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہلے ضمانت لے سکتے ہیں اگر ہمارا کیس لگ جائے، ورنہ پھر بے شک نہ لگائیں، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پھر اس میں، کیونکہ کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کچھ 7 کروڑ روپے کی چیز اگر آپ 50 لاکھ لگوا کے 25 لاکھ دے دیں اس میں، اور گواہیاں بھی آپ کی اپنی آ جائیں، آخری 2-3 گواہی رہ گئے ہیں، تو سلمان صفدر صاحب تو وہاں موجود تھے سب چیزوں میں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پھر جو پولیٹیکل تحریک ہوتی ہے نا، وہ عمران خان صاحب خود نہیں چلنے دیتے، یعنی جینونلی جو لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی کو کہتے ہیں جا کے فوج سے بات کرو، کسی سے کہتے ہیں لڑائی۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں اس وقت، ان کے جتنے رابطہ کار تھے اور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کلیئر ہو چکے ہیں کہ یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا اس حکومت کے پلے کچھ نہیں، تو جتنے لوگ عمران خان نے بھیجے ہیں ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور براہ راست وہ جو فیلڈ مارشل کے خلاف انہوں نے کل بھی ٹویٹ کی ہیں، تو گفتگو کا تو کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے نا، تحریک کس نے چلانی ہے؟ اس علی امین گنڈا پور نے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر گفتگو نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کا دوسرا آپشن تو پھر سڑکوں کی تحریک ہی ہے نا۔ میں وہیں آ رہا ہوں کہ جس کا ہیرو بنایا تھا علی امین گنڈا پور کو، اس نے پہلے 5 اگست کو نقطہ انتہا کو نقطہ آغاز قرار دیا، اور جب کہا افغانستان جاؤ تو انہوں نے کہا میرا تو پاسپورٹ بلاک ہے، یعنی ادھر سے نہ ہی ہے کہ بھئی میرے سے بڑک شڑک لگوا لیں، باقی میری طرف سے آپ تحریک نہیں چلا سکتے۔ جس نے جنید اکبر خان نے ایک پازیٹیو، یہ میں پی ٹی آئی کے بہاف کی بات کر رہا ہوں کہ میں شارع ریشم بھی بند کروں گا، میں فلاں بھی بند کروں گا، انڈس ہائی وے بھی بند کروں گا، اور میں کے پی چوک کروں گا اور پاکستان چوک ہو جائے گا۔ اس کو عمران خان نے براہ راست میسج بھیجا، کس کے ذریعے؟ بیرسٹر گوہر کے ذریعے، اسے کہا کہ تم نے فلاں انٹرویو میں یہ ان لوگوں کے خلاف کیوں بات کی ہے جا کے؟ کچھ نہ کرو، زیرو ہو گیا۔ اس کے بعد سے جنید اکبر کو سمجھ آ گئی کہ میری بڑکیں فضول میں گئی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے روک دیا ہے۔ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، کب
کون نکلا؟ مطلب سلمان اکرم راجہ جو روزانہ نوٹیفیکیشن ہی جاری کرتے ہیں، وہ اپنی گاڑی سے آپ کہہ لیں ولاگ ہی کرتے ہیں نا کہ جی میں تو مجھے تو نکلنے سے منع کر دیا، جیسے اس بچے کی آئی تھی کہ اگر پولیس مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے، جب یہ راستہ بند کر دیں گے تو ہم اسلام آباد کیسے پہنچیں گے؟ یہ میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ ایک آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ بلوچستان والوں نے ہمت کی، وہ آئے واپس چلے گئے۔ سندھ سے کراچی کے لوگ نکلتے ہیں، وہ مخصوص چند پجاروں میں آتے ہیں لوگ، راستوں میں ویڈیو شیڈیو دکھاتے ہیں، چلے گئے۔ پنجاب میں زرتاج گل نے محنت کی، لیکن سارے کہاں ہیں اب؟ کچھ مفرور ہو گئے، کیونکہ کوئی پالیسی میں تسلسل نہیں تھا عمران خان کی کہ مجھے اسے انجام پہ کیا لے کے جانا ہے۔ کیا میں نے بات چیت سے ہی ختم کر لی؟ کہا تھا اس مرتبہ تحریک میں اندر سے لیڈ کروں گا، تو لیڈ کرنے کے بعد خود ہی نکل گئے نا، وہ کمیٹی بنا دی۔ پتہ لگ گیا کہ جب ایک ٹویٹ کیا نا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ نہیں اٹھا رہے، اس کے بعد وہ 5 رکنی کمیٹی بنا دی نا، جس میں سارے لوگ آئے۔ تو خان صاحب کو اب آخری مرحلہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں، کل انہوں نے کہا کہ میں سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دو، تو پھر اگلا کیا ہے جو پہلے بھی کر چکے، ریزائن کر دو۔ اچھا کوئی فرق پڑا تھا اس سے؟ مطلب پارٹی کے اندر وہاں پہلی دراڑ آئی تھی جب آپ اسمبلی سے جا رہے تھے، لوگوں کی رائے میں کہ بھئی اب، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو تو 100% پتا کہ ہم نے نہیں آنا، نہ خان لائے گا نہ ہم آ سکیں گے، تو وہ اپنی اپنی اس کے اوپر ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر، یہ تحریک انصاف کی تحریک اب کہاں تک پہنچی ہے بھی کہ نہیں ہے، یا آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس پرمغز سوال سے پہلے 2-3 باتیں۔ ایک تو سلمان صفدر والی ابھی بات ہوئی اور عدالت کی بات ہوئی۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو حوالوں میں ڈسکس کرتے ہیں جن کی مذمت کرنی چاہیے۔ اچھا، مثال کے طور پہ کہ ایک کوئی بھی بندہ ہو، جیل میں ہو، کوئی بھی بندہ ہو جس کی درخواست ضمانت نہ لگ رہی ہو، اور 6 مہینے 8 مہینے سال ضمانت کی درخواست ہی نہ لگے، یہ تو اس کا بنیادی حق ہے نا۔ جیسے اس لاہور ہائی کورٹ نے ایک نئی نظیر سیٹ کی کہ پہلے سرنڈر کریں پھر درخواست آپ کی سنی جائے گی، تو نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہ منیر نیازی صاحب کا پڑھ کے ہم تو مانیائی صاحب سے معذرت کے ساتھ کچھ جونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آپ 121 سے زیادہ لوگ لے کر قومی اسمبلی سے نکل جائیں، دونوں اپنی جو دونوں اپنی حکومتیں ختم کر دیں؟ عمران خان جی جی، کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا، یا کون سا اتنا ارسطو تھا جس نے اس نظام میں یہ سوچا کہ ہاں ہم قومی اسمبلی سے نکل جائیں، ہم دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دیں، اور 10 دن کا فرق تھا جب الیکشن مل رہے تھے، نہیں کرنا، یہ 10 دن میری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ بریک تھرو ہو گیا، پرویز خٹک کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، فواد چودھری کہتے ہیں، ہم سارا کچھ انہوں نے کہا لکھ کے دیں، بس انہوں نے کہا لکھ کے، یہ لکھا ہے سائن کریں گے، بس خان صاحب سے پوچھ لیں، وہ نکل گئے۔ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فوج سے لڑائیاں لڑیں؟ بہت یہ ارد گرد آپ دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، تیونس دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، کون ہے جو جا کے اس فوج سے لڑائے؟ سارا کچھ انہوں نے وہی اچیو کیا، فوج ہی عوام کی مدد کے لیے، ہاں سارا آپ نے کسی کو کارنر کر دیا نا۔ تو جب آپ نے کارنر کر دیا، جب آپ نے فریق بنا دیا جعلی لوگوں کا، جس کو آج آپ ڈاکو الائنس کہتے ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلط شدہ ہیں، اور جو فارم 47 کے لوگ ہیں جن کی اپنی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، لیکن آپ کے یہ بینیفیشری ہیں، یہ اقتدار میں آپ کی وجہ سے ہیں۔ آج آپ جیل میں ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں، آج آپ یہ اقتدار میں ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے، ہاں، اور کن کی وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے۔ لیکن بھٹی صاحب ایک یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ یہ اگر فارم 47 والے اندر ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، مجھے اس دلیل کی بات نہیں سمجھ، مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا۔ میں ابھی سمجھاتا ہوں بلکہ تہاڈے نال فراڈ ہویا ہے، ایسے بھی قصوروار تسی ہو۔ جی یار بھٹی صاحب میں سن تو لیں اچھا، ایشو یہ ہے میرے بھائی کہ اگر فوج سے پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی نہ ہوتی، اگر یہ نیوٹرل، اعلیٰ کار، سازشی ہینڈلرز، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی یہاں تک نہ پہنچتی، اگر آپ درمیان کا رستہ لے لیتے، اگر خدا نہ خواست یہ جو 9 مئی ہے یہ نہ ہوتا، تو آج یہ بیٹھے ہوتے؟ ٹھیک بتائیں نا،
आइए बैठे होते हैं। और ये तो वो लोग हैं जिन कसम से जिनके घर वाले हंसते हैं। नहीं, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है 8 फरवरी को, लेकिन इसके कसूरवार पीटीआई खुद है। नहीं, मैं अभी आपने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे। हाँ, तो आपने ये आर्गुमेंट दिया। उसी पे बात अगर आप ओवरऑल कहते हैं तो मैं कहते हैं कि इनका क्या, इनकी जमहूरियत या इनका जो है वो, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, आप पीटीआई की तहरीक की बात कर, क्यों नहीं तहरीक चल रही? कि जब आप गलत फैसले करते हैं, मैं इसको सम अप करता हूँ, जब आप ब्लंडर्स करते हैं, जब आप अपने वर्कर्स को थका देते हैं, जब आप मुसलसल आपकी हिकमत अमली गलत होती है, जब आपकी लड़ाइयाँ गलत साइड पे होती हैं जहाँ से आप कभी नहीं जीत सकते, और जब आप अपने लिए सियासी स्पेस कम करते जाते हैं, तो फिर तहरीक नहीं चला करती। फिर आपको कुछ रास्ता निकालना पड़ता है तहरीक के लिए, अपनी स्पेस के लिए, अपना सारे कुछ के लिए, तभी ये तहरीक चलेगी। इमरान खान अपनी जगह पे खड़े हैं, ना नवाज शरीफ खड़ा रहा, ना आसिफ अली जरदारी खड़ा रहा। सब कर रहे हैं इमरान नहीं, तहरीक की बात आप कर रहे हैं। तो तहरीक तो इमरान खान कर रहे हैं, लड़ाई इमरान खान साहब कर रहे हैं। नहीं, मैं आप कह रहा हूँ ना कि आपने कहा सड़कों पे चली, आपने कहा कि रिहा करवाना है, आपने कहा कि हुकूमत को फारग करना है, आपने कहा कि वो तहरीक क्यों कामयाब नहीं हुई? वो कामयाब नहीं हो सकती। आज तक पाकिस्तान में एक आध तहरीक के अलावा कभी वो तहरीक माजी में कामयाब नहीं हुई जिसके पीछे कोई ना कोई हाथ नहीं था। ठीक, एक बेनज़ीर साहब वाली एक तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको 2-3 किताबें दूंगा, उसके पीछे भी कौन कौन थे वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। ठीक, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ ਉਂਝ भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी। सही रिपीट हो गया शेर वैसे। राय साहब, ये हर 10-10 मरतबा हो रहा है। अभी आपने किया था ना, मैं दोबारा एक बार फिर सुन ले, कुछ ਉਂਝ भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक। अब तो नहीं रिपीट हुआ। नहीं 3 दफा कोई नहीं मरता। राय साहब, आपकी क्या राय सर? ये इन्होंने तो मुझे भट्टी साहब का एक आर्गुमेंट काफी अजीब लगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप ही का कसूरवार है। आपका 8 फरवरी को साथ जो कुछ हुआ वो भी आपका कसूर। मैं रीसेंट डेवलपमेंट से ज़रा वापस लेके जाना चाहूँगा आपको। आई स्टिल रिमेंबर उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक फ्लड तब भी आया था जब साउथ पंजाब बहुत बुरी तरह हिट हुआ था। आई वाज कवरिंग दैट फ्लड। मैं उस एरिया में महीने के करीब रह के आया था। मरियम बीबी तब भी एक्टिव थी। इनके विजुअल्स अभी तक मुझे वो याद हैं कि जिस एरिया में, क्योंकि हम कवर कर रहे थे, फील्ड के अंदर थे, हम कवर कर रहे थे। अपोजिशन एक भरपूर किरदार अदा कर रही थी, लोगों की हेल्प कर रही थी, वहाँ पर जा रही थी, वीडियोज़ आ रही थी, खबरें चल रही थी, टीवी के ऊपर भी अपोजिशन की कवरेज थी। अब आप ज़रा सोचिए, एक तरफ ये अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जब इतना बड़ा क्राइसिस है, दो आई डू स्ट्रिक्टली बिलीव इन दैट कि फ्लड या किसी भी कुदरती आफत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं होनी चाहिए। ये एक कुदरती आफत है, हम सबको आगे स्टेप अप करके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वो टाइम कि जब आप डिप्टी कमिश्नर साहबान को, वो टाइम कि जब आप असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को और इंतजामिया को कमेटियों में बुलाकर पूछ सकते थे कि भाईजान वहाँ पे शगाफ डाल के इतनी आबादी बचाई जा सकती थी, जलालपुर पीर वाला की बात कर रहा हूँ, इतनी आबादी बचाई जा सकती थी, आप कहाँ पे थे? ये लोग कमेटियों से इस्तीफे दे रहे। फिर उसको वापस लेके आप चले जाएं कि जहाँ पे आपने नेशनल असेंबली की बात की, रिजाइन किए, असेंबलीज तोड़ी, केपी की, पंजाब की तोड़ी। फेयर इनफ, आपकी परसेप्शन एट दैट टाइम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है हमने असेंबलीज तोड़ दी तो इतने दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे। आप एक दफा वो क्राइसिस फेस कर चुके हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, कि तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई और नहीं जानता। दे प्लान समथिंग एल्स और एक्चुअली कुछ और हुआ। उसके बाद अदालतें, आइन, अदालत सारा एक साइड के ऊपर हो गया। इतना एक्सपीरियंस इनको हो जाना चाहिए था बाकी कि यार अब तो चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कर लो। मुझे बताइए कि सलमान अकरम राजा साहब की हाफजाबाद में एक स्टेटमेंट सैलाब के ऊपर, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा रहनुमा आपको फील्ड के अंदर नजर आया? अच्छा राय साहब, मुझे वैसी एक क्योंकि आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, वैसी मेरे जेहन में एक बात आई कि आपको नहीं लगता कि 2022, बल्कि नॉट 2022 में तो उनकी हुकूमत गई थी, उससे पहले 2018, 19, चले 20 तक आप समझ लें कि 20 तक एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की प्लानिंग, स्केजुलिंग, क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके साथ बोलना है, एक्चुअली इसका प्लानर चूंकि कोई और था तो हर तीर जो है वो निशाने पे बैठता था। वो जलसा करते थे, वो तहरीक चलाते थे, वो उसका प्लानर एक्चुअली कोई और था, इसलिए सारी चीजें जो है वो बिल्कुल लाइन पे। लेकिन अब उसके बाद जो अब वो जैसे कहते हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भी चाल चलते हैं, वो चाल पुठी पड़ रही है। मुझे यहाँ पे लाइक आई हैव टू पुट अप अ क्वेश्चन हियर कि आप कह रहे हैं 18, 19, 20 में ख्वाजा साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमारे मामला तो तय पा गए थे, तो फिर कैसे हर चीज प्लान के मुताबिक तय नहीं पाए थे? ऑफर हुई थी, ऑफर हो जाते तो टेक ओवर कर ऑफर, लेकिन आगे से कोविड आ गया था ना, तो फिर उसके बाद वो क्राइसिस और थे, वो एक डिजास्टर और हो गया था। उसके बाद ऑफर हो चुकी थी, सेड दैट ऑन रिकॉर्ड कि पंजाब पहले और उसके बाद वफाक,
اگر وہ سارا کچھ وہاں پر بھی چل رہے تھے تو ان کی تقریریں ان کے سارے ڈاٹس یا سارے تیر نشانے پر کیسے چل رہے تھے؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ہیلپ نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ایک صفحہ پھٹ چکا تھا تب تک، اگر پھٹ چکا تھا تو آگے دوسروں کو انگیج کیا گیا تھا 19 سے پہلے 19 سے پہلے 11 سے لے کے 19 تک کا سفر. منصور بھی یو نو دیٹ آئی نو دیٹ کہ سال ڈیڑھ سال تو کسی بھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اگر نارمل الیکشن ہو، نارمل حکومت آئے تو سال ڈیڑھ سال تو وہ صرف آتے آنیاں جانیاں دیکھو نا. اس کے بعد پھر آگے تھرڈ ایئر، پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ تھرڈ ایئر کے بعد الیکشن کی تیاری سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یہاں پر جہاں یس وی ڈو اگری کہ پاکستان تحریک انصاف وکٹم ہے، رگڑا لگ رہا ہے، کارنرڈ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. غلطیاں کوتاہیاں بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ایک مارجن میرے جیسے لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ یار وکٹم ہے اس ٹائم کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ مریم بی بی جب لاہور لینڈ کی اور گرفتار ہوئیں تو اس ٹائم کے اوپر بھی بہت سارے لاہور کے صحافی سارے شہباز شریف صاحب کے کانوائے کے ساتھ ساتھ تھے، اور میں ایئرپورٹ کے باہر کھڑا کور کر رہا تھا کہ یہاں شیلنگ ہو رہی ہے بھائی، بندے پکڑے جا رہے ہیں بھائی، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دے وہ وکٹم. سسٹم ہے، سسٹم میں سے آپ نے اپنے سارے پتے ایک کے بعد ایک بہت جلدی ایگزاسٹ کر دیے پاکستان تحریک انصاف. بہت جلدی فرسٹریشن ہے، بہت ٹائم کم ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن پتے بہت جلدی ایگزاسٹ کیے انہوں نے، بہت جلدی پتے پہ پتا پھینکا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ اب کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا. عامر صاحب آپ بھی وکٹم بلیمنگ کے اوپر، میں تو آج حیران ہو گیا ہوں کہ بھٹی صاحب بھی وکٹم بلیمنگ کی بات کر رہے ہیں، مطلب کہ جی ان کا قصور ہے، جو کچھ بھی کیا انہوں نے لڑائیاں کی، اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. نہیں یہ اچھا اصل میں نا ہم بینگ رپورٹر ہمیں کچھ چیزوں کو سامنے لانا ہوتا ہے، پھر تجزیہ کرنا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اور یہ لوگ جتنی پی ایم ایل این تھی، ان کی ضمانتیں 2.5 سال نہیں ہوتی تھی. یہ صرف جنوری سے لے کے اور اگست میں چیخیں آ گئی ہیں کہ ہمارا کیس نہیں لگ رہا. وہ سپریم کورٹ تک واپس بھیج دیتی تھی، کیونکہ گڈ ٹو سی والے بیٹھے تھے کہ وہ صرف سی کسی اور کے لیے تھا. یہ نہیں تھا کہ کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا. وہ کیس نہیں دیکھتے تھے، بندہ دیکھتے تھے. کیس نہیں فیس دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، وہی بندہ دیکھتے تھے نا. تو وہاں یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کیا رانا ثناء اللہ کو ہیروئن میں ڈالا، حنیف عباسی کو سزا دی؟ آپ جتنے گنتے چلے جائیں، یہ بلیم گیم دونوں طرف ہے اور دونوں انفارچونیٹ ہے. لیکن عامر صاحب یہ جو جملہ ہے، یہ جو آپ نے کہا کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ سر اس طرح تو پھر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. میں اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو میں نے بات کی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست عمل ہے؟ ایک وہ ہے جو تاریخ ہے، جو آج حال ہے، سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، مستقبل کی طرف جا رہے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ کام، آج آپ کو جنوری سے کیس میں سزا ہوئی ہے اور آپ مسلسل دھاڑ رہے ہیں کہ ہمارا کیس نہیں سن رہے. بھائی آپ کے کیس جو آپ کے مخالف تھے، جن کو آپ پرچے دلوا رہے تھے، جن کو آپ اندر کرا رہے تھے، ان کے کیس لگتے ہی نہیں تھے. سپریم کورٹ تک بھی چلے جاؤ. یہ عامر فاروق کو پہلے گالیاں دیتی تھی پی ٹی آئی، اب ساری یاد کر رہی ہے کہ جتنا ریلیف جسٹس عامر فاروق نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دیا ہے، جس کے ساتھ وہ 6 ججز لگوا کے گیم بدلوائی گئی. اور میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ سزا تب ہوگی جب یہاں سے ججز نئے آ جائیں گے، اور وہ ترمیم کے ذریعے آنے تھے. چیک کر لیں ریکارڈ پہ پھر سارے کہ جی یہ تو ملے ہوئے ہیں. بھائی ہم تو خبر لائیں گے، ہم تو دیں گے، چاہے وہ کسی سائیڈ کی بھی ہو، ہمارا کام ہے نا. اب آپ ان چیزوں پہ آ جائیں کہ جی 2019. لیکن ایسا کیوں تھا 2019؟ نہیں ایسا کیوں تھا؟ ایسا یہ تھا کہ ایک ججز پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے تھے. یہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. یہ ہو رہی ہے اپنی گنڈے داری ہے، گپ شپ ہے کہ جی آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو پھر ایسے ججز کی ضرورت تھی جو چل سکیں. بھائی وہ پہلے بھی تو اس طرح ہی لائے گئے تھے. ٹھیک، مطلب لوگوں کے اوپر تو الزام بہت تھوڑی تھوڑی رشوت لے کے کیس لگانے کے تھے، چھوٹی جگہوں پہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی 15 بدل گئے ہیں، تیسری دفعہ بدل گئے ہیں. یہ قابل قبول لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا. مطلب آپ دیکھیں نا، اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے عمران خان کی فالوئنگ ہے. اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے 2018 میں بھی اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی تھی، لیکن فیصلے میں ریفلیکٹ نہیں کرتے. وہاں محبت آڑے آ جاتی ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں چل رہا، یہی بات ہو رہی ہے نا. لیکن جب آپ مشرف کے ساتھ بطور صوبائی وزیر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت آئین آپ کے لیے بہترین تھا. آپ لگے اور آپ نے اپنے ہم نوابی سارے ساتھ جج لگوا لیے، کیونکہ آپ ترجمان تھے افتخار چودھری کے. تو پھر جو آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے ان کو بھی ساتھ سیٹ کرایا. ہماری عدلیہ، ہماری جتنی ہسٹری ہے، اور آج حال کوئی ہے حال بالکل نہیں ہے. یہ قابل رشک نہیں ہے، نہ یہ مثالیں بنانے والی بات ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹھ کے طے کرائیں. آئین پاکستان جس کے اوپر ہمارے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور کھرل صاحب بھی کہ یہ سمجھ رہے تھے اسمبلیاں توڑ کے اور ہم آئین کے مطابق الیکشن کرا لیں گے. اور بھائی جب آپ آئے آئین کے ذریعے نہیں تھے، آپ کو بھی تو اندر ٹھپے لگا کے اس وقت اب باہر لگ گئے. فارم 47 پہ بہت چیخ پر پکاڑ ہے نا بھائی. 2018 میں یہی آرگومنٹ کل کو اگر یہی آئے گا. نہیں ہم اسی طرح نون لیگ کی گورنمنٹ بھی اگر کسی دن جاتی ہے، ہم 78 ایئر سے کر کیا رہے ہیں. نہیں میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل کو نون لیگ کی گورنمنٹ جاتی ہے
तो आमिर इलियास राणा साहब को, भट्टी साहब को, राय साहब को कोई दुख नहीं होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, जो नहीं नहीं, मैं आज के हालात पे नहीं, क्यों आपको क्यों एक सेकंड, क्यों उन्होंने कहा है? मैं कह रहा हूँ आप ठप्पों के साथ आए ये जो बहुत ज्यादा चले पीपल्स गए। पार्टी बोलती है, और मैं हमेशा कहता हूँ अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं है अगर शहबाज शरीफ को निकालना है। पीपल्स पार्टी जितनी बोलती है, सदर साहब कहें आइन का आर्टिकल ये है और आप एतमाद का वोट लें, आपको अदम एतमाद लाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, सदर साहब के भी कहने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, कोई और ही कह दे। नहीं क्यों कह दें? नहीं नहीं, जिन्हें लेनी है हुकूमत, अगर तैयारी है ਤੁਹਾਡੀ तो कर लो ना। लेकिन यही बात वहां से स्टार्ट कर लें जब पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ऑफर की कि आप वजीर आजम ले आए, तो फिर वहां बात वही आ गई ना कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अच्छा, आप एक्चुअली बिलीव करते हैं पीपल्स पार्टी की उस ऑफर को कि पीपल्स पार्टी बड़े सिंसियर दिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रही थी? सियासत इस चीज का नाम नहीं है कि हाँ जी आए आके मिलकर एक मिनट, सियासत इस चीज का नाम नहीं है। इन दी एंड वो जो बात अभी भट्टी साहब ने कही ना कि रास्ता बनाना पड़ता है, चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ को कहते थे कि दीवार में टक्कर मारने से बेहतर है रास्ता ढूंढो। ठीक। अगर आपके सामने पागल खड़ा है तो आप उसके सामने से नहीं गुजरेंगे, वो बट्टा मारेगा, आप साइड से गुजर जाएं। ठीक। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं तो लड़ने के भी तरीके हैं। आपने ये तरीका बनाया कि आप दफर वाली हुकूमत बनाते हैं, आप उनको कभी यजीद बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, और फिर मांगते भी उन्हीं से हैं कि मैं तो बात भी आपसे करूंगा। तो आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, लोग आते हैं, लोग थक चुके। जो स्टार्ट में आम आदमी के वो था जो उसने वोट किया, आप उसको संभालते, आप गवर्नमेंट ले लेते। आज आपके ख्याल में आम आदमी की क्या सोच है? आम आदमी की सोच है कि मुझे रोटी, वो क्या सोचता नहीं जी, उसको अपनी की पड़ी है, उसको पीटीआई की नहीं पड़ी? नहीं, सब बंदों सबको अपनी पड़ी हुई है। ठीक, मतलब और उसका पीटीआई के साथ अब वो लेना देना है ही नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ एक्चुअली कल ही कोई पूछ रहा था कि मैं कहीं पे बैठा तो उन्होंने कहा जी आपकी क्या राय है, क्या 8 फरवरी में जो इमरान खान की सपोर्ट थी अब वो वैसी ही है या कम हो गई है? मैं यही सवाल आपके सामने रखता नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ हर इलेक्शन का माहौल बताता है। अच्छा, जब आप इलेक्शन में जाएंगे ना, ये सवाल तब होगा, पता नहीं क्या हालात होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे 19 की बात हो रही थी कि ख्वाजा आसिफ को कहा, लेकिन वो रज गए थे ना। आप पता नहीं ब्रीफिंग में थे कि नहीं जनरल बाजवा की? भट्टी साहब तो ज़रूर थे, जो एक अफ्तारी पे बड़ी लंबी चौड़ी हुई थी। मैं नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक बंदे से पूछा, उसने कहा दुल्हन जब नई नई आए ना तो नाज नखरे ये होते हैं कि आपको कुछ नहीं करने दिया जाता, और बहुत दिनों बाद कहते हैं ज़रा मीठा तो पकाओ। वो कहने लगे हम तो खिला खिला के खुद कड़वे हो गए, लोगों से गालियां खा रहे हैं। इमरान खान ने हमें कहा था 100 दिन में मैं ये कर दूंगा, 6 महीने में ये कर दूंगा, कुछ भी डिलीवरी नहीं है। ये दुल्हन वाली मिसाल जनरल बाजवा ने दी थी? ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप वैसे बता रहे हैं? अच्छा, मैं क्योंकि मुझे उसने बताया, मैंने पूछा ये क्यों हो रही है ब्रीफिंग। अच्छा। उसने कहा भाई दुल्हन को कब तक बिठाया जाएगा, करो ना काम, डिलीवर करो। जब वो कह रहे थे भाई बुजदार आप, फिर उन्होंने दी ना, फिर करा दिया। नहीं तो फिर उन्होंने दी, फिर हुकूमत भी उन्होंने दी थी, ले भी ली। अच्छा, और फिर वो दोबारा मिल गए। और अब इस वक्त नहीं, जनरल बाजवा फिर मिल गए, क्योंकि एक्सटेंशन का उन्हें पता था कि दाव लगना है तो फिर इस तरह लगना है। आपको याद है जब वो दुल्हन को सलूट हो रहे थे, ठक ठक ठक, कौन सी दुल्हन को? वजीर आजम इमरान खान। अच्छा, मैं मिक्सअप कर अच्छा, आप कर लें, मजा ले लें। GHQ में जब उनके लिए 2 घंटे इस बात पे लगाए गए कि इनको खाना क्या पेश किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पता लगा कि जी लेग पीसेस का एक थाल रखते हैं। अच्छा, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, ये भी हमारी GHQ को सोचना पड़ा कि हमारा मेहमान आ रहा है, मुझे क्या खाना पेश। आई थिंक ये हर प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये तो कोई खबर नहीं है। नहीं, ये आपकी राय है, बिल्कुल होगी। मैं जो बता रहा हूँ, जब दुल्हन बना रहे थे, ऐसा नहीं है। ये अभी भट्टी साहब आपको किताबों का बता रहे थे, एक हिस्ट्री का एक वाकया सुनिएगा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उन्होंने विजिट किया था, ब्रीफिंग जो पहली थी, तो उनको सलूट तक मारने से इनकार हुआ था। उसमें कैप ही नहीं पहनने की जरूरत, तो आप सलूट भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तो सलूट थे, हुआ है मतलब सबसे आखिरी सलूट तो जनरल आसिम मुनीर का था ना। फिर आपने भट्टी साहब की तरफ नहीं, उसमें मेजर जनरल आसिम मुनीर का सलूट था ना, सबसे आखिरी DGMI का। जी भट्टी साहब, ये आमिर साहब ने भी बहुत सी एग्जांपल्स दी कि जनाब माजी में भी तो इस तरह होता था ना। तो जब माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, तो फिर आज वाले किस बात पे चीखें मार रहे हैं? अगर माजी में मिसाल के फ़र्ज़ कर लेते हैं, माजी में जो होता था गलत होता था, तो आज वो गलत होना चाहिए। इशू बुनियादी तौर पे भाई ये है कि आपने नारे क्या मारे थे। एक तो छोड़ दीजिए ना कि ये जो रास्ता, एक मैंने आपको बताया था, वो बात भूल जाएगी कि PTI की क्या गलतियाँ हैं। आपको बताया कि ये PTI गलतियाँ ना करती तो आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती, ठीक, बिल्कुल एक डिफरेंट पिच पे खड़ी होती। और दूसरी अगर दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड पे खौफ, डर, जुल्म, जबर, ऐसी कानून साजियाँ जो कभी सुनी नहीं, और झूठे मुकदमे, और लीडरशिप क्राइसिस। इमरान खान जेल में रसाई मुमकिन नहीं, आधे रुपोश हैं, आधे जेलों में हैं, और कंप्रोमाइज्ड रॉन्ग नंबर जो PTI में हैं, और आपसी लड़ाइयाँ, और मुसलसल उसमें तहरीकों में रहना।
दूसरी तरफ ये अब दुल्हन, अगर दुल्हन ही लेनी थी तो दुल्हन चंगी ले लेंदे। दुल्हन अच्छा नंबर 1 ये आप खान साहब के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ये आमिर साहब ने जो एग्जांपल दी, ये हुआ था जनरल बाजवा की? मैं एक तो पहली बात ये है कि वो कह रहे थे कि मैंने काटा नहीं दरमियान में, कि बुरा लगता था। मैं किसी भी रमज़ान मैं सोच रहा था किसी भी रमज़ान की इफ्तारी या सहरी की कोई ब्रीफिंग अगर हुई थी तो मैं नहीं था। आप नहीं थे? नहीं, और वैसे बहुत सारी में थे लेकिन इसमें नहीं थे। और ये जो दुल्हन वाला किस्सा है ये भी नहीं, मुझे सब आप नहीं होंगे शायद। नहीं, दुल्हन का किस्सा मैंने जनरल बाजवा के नाम से नहीं किया मंसूब। अच्छा, आपने? मैंने ये कहा कि जो मीटिंग में शुरका थे, जिसने मीटिंग अरेंज करके लोगों को बुलाया था, मैंने पूछा, मैं तो नहीं था, मैं कहा भैया क्या चक्कर हुआ है इतनी लंबी? उसने कहा भाई कब तक संभालेंगे। अच्छा, ठीक। उस दिन लोगों को उन साहब ने ये बात मिक्स मैसेज, और वही अकेले बुलाने वाले थे सब। ठीक ठीक ठीक, जिनकी कॉल जाती थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, नहीं क्लियर हो गया सर दुल्हन के मामले में। अब आ जाइए इस बात पे कि आपने कहा कि क्या इमरान खान की 8 फरवरी 2024 वाली स्पोर्ट आज है? हाँ, उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा इसलिए है कि कितने शोज मैं और आप कर रहे हैं, ये शो भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं, मैं अभी करूंगा बात। आसिफ अली जरदारी साहब, नहीं एंड पे करेंगे ज़रूर, बरकत के लिए कीजिएगा। आसिफ अली जरदारी के लिए कर रहे हैं आप, पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं आप। कभी कोई इशू होता है तो आप पीपल्स पार्टी पे। मेरी बात इसमें एक सहाफ़ी होने के नाते मेरा एक नुक्ता है, आप भी 3 जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, एक नुक्ता ये है कि हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज़ अ न्यूज़ मेकिंग पर्सनालिटी और एन इवेंट। वो जेल में है ना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो इस वक्त जेल में है, ऑब्वियसली वो डिस्कस हो। कल जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब डिस्कस होते थे, ऐसा तो नहीं है। नहीं। या अगर हम 70s में चले जाएं, 1 मिनट के लिए समझिए कि हम चारों 70s में चले जाएं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में हो, तो ऑब्वियसली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही डिस्कस होंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप एक हद होती है ना, कोई एक दूसरी तरफ भी होता है ना न्यूज़, कोई दूसरी तरफ भी इवेंट होता है, दूसरी तरफ भी चीज़ होती है। जब भी बात होती है जाली हुक्मरान है ये, जब भी बात होती है फॉर्म 47 वाले हैं, जब भी बात होती है नवाजे हुए लोग हैं, जब भी बात होती है वोट की, सिर्फ फिक्रा कहूँगा जी, आपकी तरदीद नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा कप्तान किसने कटवाया था आपके प्रोग्राम में? कितनी दफ़ा कटवाया गया कि बस कर? ये हुआ था। एट द सेम टाइम आपने खान साहब का इंटरव्यू किया और खान साहब ने खुद से कहा कि कुछ नहीं कटवा। हालांकि किसी और ने कॉल की, लेकिन ये तो मैं गवाही दे सकता हूँ ना कि कितना मैंने फेस किया उसको, मेरे कप्तान। आमिर, मैं जब उस चैनल में काम करता था और मैं कहता था तो आमिर साहब उस वक्त भी ब्यूरो चीफ थे, आज भी वहीं पे हैं, तो मेरी वजह से कम से कम इनके ऊपर बहुत प्रेशर्स आए खान साहब के दौर में, इसलिए ये गवाह हैं। मेरे भाई प्रेशर्स क्या इमरान खान दौर में नहीं थे? क्या ऑफ एयर लोग नहीं हुए? क्या लोगों के किरदार कुशी नहीं हुई? तो क्या आज रुक गई है? यही मेरा पॉइंट। आज चूंकि कुछ उस वक्त हम दूसरी तरफ खड़े थे, हमें फील नहीं होता था, हम कहते थे कौन सी यार आज़ादी है, सहाफत को खतरा है, क्या हुआ है? मेरा इस पे मैं भट्टी साहब आपकी बात को सपोर्ट करूंगा कि चूंकि माजी में हुआ, इसलिए अगर आज रिपीट हो रहा है तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और दूसरी ये जो अभी ये इसी पे मैं आ रहा था। अच्छा, पहले तो वो बात कि आज उससे ज्यादा मकबूलियत है, आज उससे ज्यादा गली मोहल्ले कहीं भी चले जाएं यार, मैं तो जिस मुल्क में जाता हूँ, बिलीव मी, अगर कोई पाकिस्तान को जानता है जो गैर मुल्की है तो पाकिस्तान के बाद इमरान खान का नाम लेता है। अब उसे तो नहीं पता ना कि मेरे कौन सी लाइकिंग है, कौन सी डिसलाइकिंग है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। नहीं, आपके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। थैंक यू यार, आई लव यू। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को पूरी दुनिया जानती है यार, ये कितनी अच्छी है, यानी आई एम सो हैप्पी। ये मेरे स्टूडियो में जितने कैमरामैन बैठे हुए, मैं अगर इनसे पूछूंगा कि भट्टी साहब का सबसे पसंदीदा लीडर कौन है, आप बता देंगे? 1 मिनट में बताएंगे? सर, मेरा लीडर ना लफ्ज, लीडर की रेड ना मारे, लीडर कह दे आज़ाद। आपका क्या कहूं फिर? लीडर कह दे। अच्छा, मेरा अच्छा सियासतदान, जो सियासतदानों में से अच्छे, अच्छा सियासतदान। नहीं, आज मेरा कप्तान हो गया, बोले तेरा कप्तान, सालों मेरा कप्तान। अच्छा चलो, आज मैं ले लेता हूँ मेरा कप्तान, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं, मैंने तो कभी कोई इस पर नहीं किया। तो लेकिन मुझे खुशी ये है कि आज आपके सारे कैमरामैन वाले कैमरा और सारा स्टाफ कहेगा कि ये किसको लाइक करता है। दुख ये है कि सारे किसी के बारे में कहें तो पता चले मीसने का पता ही कोई नहीं, और उसको कहते हैं हम जर्नलिज्म कर लें। भाई खेत मिट्टी जर्नलिज्म होता है, आजादी राय का इजहार करना, एक पोजीशन लेना, एक तरफ खड़े होना। जरूरी नहीं है कि आप उस तरफ खड़े होंगे तो आपको डर है कि कहीं वो ना हो और उस तरफ खड़े हो। की तरह हर चीज नहीं बड़ी साहब, ये अब इख्तिलाफ है, जरूरी तो नहीं है ना कि आप ये कहें कि जी आपको ये पसंद है या ये पसंद है।
है, मैं कहूँ भाईजान मुझे दोनों ही नहीं पसंद, फिर तो ये भी पोजीशन लग रहा है लेना ना, आपने भाई, तो पोजीशन है ना। पोजीशन लेना, लेकिन पोजीशन ये तो नहीं है कि बहुत जरूरी सारे होना चाहिए ऐसे कि आपने दोनों में से कोई एक चीज भाईजान पसंद करनी है। सुबह से शाम तक लोगों को हम सुनते हैं, पता ही नहीं चलता वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल भाई, क्लियर होता है, नहीं कोई ऐसी नहीं बात कोई नहीं होता, बहुत सारे कोई नहीं होता, नहीं, क्लियर बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे ऐसे मिसने भाई, अच्छा ये मुझे पसंद है, ये आपको पसंद है, ये भी ठीक है, एक तीसरा आता है वो दोनों नहीं पसंद, ठीक है ना, हाँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम लेकिन है? ये बात यहाँ तक रहे ना तो बहुत अच्छा है, पसंद और नापसंद। जब मेरी पसंद पे मैं कहूँ कि आपको पसंद नहीं और मैं आपका दुश्मन हो जाऊं, यहाँ इंतहा पसंदी आती है, टॉलरेंस खत्म हो अच्छा, जाती है। नंबर यही वन, हमारा और मसला है। पर्सनल अटैक शुरू हो जाए, पर्सनल अटैक, यही पर्सनल मसला है अटैक शुरू हो जाए। हाँ, नंबर इवन आपके ऊपर भी पर्सनल अटैक भट्ट साहब अगर शुरू हो तो वो भी गलत है। नहीं हमारे होते रहते हैं, हम तो कहते नहीं, हैं ये गलत है भट्ट नहीं साहब। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं गलत बात, फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है भाई मैं कह रहा हूं कि मेरी इज्जत उनकी वजह से कम हो जाएगी। दूसरी बात भाईजान, इमरान खान का दरमियानी रास्ता, इमरान खान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, किस वजह से मैं कहता हूं कि मुझे इमरान बहैसियत सियासतदान इन लोगों से अच्छा लगता है। गलत मौक़िफ़ है, मैंने भी उस पर तनकीद की, जो किया जो वो समझा खड़ा हुआ है ठीक। उसने और ये नहीं है कि आपने नारा मारा और कहा कि मैं कैद आज़म सानी हूँ, कहा कि मेरे जैसा ही कोई नहीं, और पता चला सवेरे नवाबजा नसरुल्लाह खान तो लैके एजाज़ हसन तक सारे खबरें वेख रहे सन कि जद्दा चला गया खानदान समेत, दूसरी तरफ लंदन चला गया, तीसरी तरफ गारंटियों भरी वापसी, और आज यू टर्न की बात कर, यू टर्न, ये यू टर्न ही है सर, यू टर्न अपने नजरिए से यू टर्न नहीं, ये यू टर्न नहीं, ये चीटिंग है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस निज़ाम के साथ, जिसको आप कहते हैं ये मुनाफकत है, ये दो नंबरी है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। नहीं तो जब खान साहब अगर माजी में कहें कि मैं कभी भी जो है वो मैं एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के हुकूमत में नहीं आऊंगा और फिर आ जाएं, ये मुनाफिक या यू टर्न है? कौन सा ये जो हमेशा वो कहते थे कि मैं कभी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा जो एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के जो है वो वज़ीर आज़म बने, क्योंकि मैं तो कठपुतली हूँगा, तो मैं कभी भी नहीं बनूंगा। अच्छा, और उसके बाद अगर आप ये करें तो ये चीटिंग है, मुनाफिकत है या अच्छा, यू वैसे बाय द वे एक आपको बात बता दूं कि अनडाउटेबली 2018 में भी धांधली हुई, कोई इसमें तो शक वाली बात ही नहीं, लेकिन 2018 की प्री पोल धांधली या इमरान खान 2013 में जो इलेक्शन इमरान खान की जो मकबूलियत या इमरान खान बहैसियत सियासतदान या बहैसियत सारा कुछ, एक होता है कि अपने कंधे पे बिठाना, एक होता है कि नीचे 2-4 आधे फुट की चीज रख देना, बहुत डिफरेंस है। वो भी गलत था, ये भी गलत है, लेकिन नहीं, एक होता है ब्लंड, एक होता है तबाह बर्बाद कर देना। अच्छा, यानी चौथी गियर के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए, पहली में। सर एक आपको आसान लफ्जों में समझा दूं कि चौथे गियर या 220 पे जो एक्सीडेंट होता है और जो 60 की स्पीड पे होता है, कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क कागजों में एक्सीडेंट ही लिखा जाता है, अन्य कागजों में आपको एक वैसे मिसाल दूं, ये चूंकि धांधली की बात हो रही है, मारना ते कत्ल कर देना, दो फर्क ढेर सारा फर्क है। धांधली पे मिसाल दे रहा कत्ल जो होता है ना वो फिर मार्शल लॉ होता है। ये जो रिजल्ट आते हैं ना, और क्यों होती हैं हिकमत अमली। नवाज शरीफ जब बाईपास करा के आए थे और जिस दिन लैंड किया था, तो अगले दिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन था। ठीक, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, और बिलावल भुट्टो और इमरान खान की ड्यूटी थी कि मोदी का यार कहना है, और पूरी कंपेन आज़ाद कश्मीर में इन दोनों सियासतदानों ने एक ही प्लेटफॉर्म था, वो जो हैंडलर्स थे, कि ये फिक्र करना है कि ये मोदी का यार है, ठीक है, चेक करा लें। जब रिज़ल्ट आया लैंडस्लाइड विक्ट्री PMLN ने ली, तो बहुत सारे अफसर, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा वरना गड़बड़ हो जाएगी, कि सेक्टर्स थे वो सारे बदले गए कि तुमने तो ये कहा था, यहाँ से ये आएगा, यहाँ सबको तबादला किया। फिर आज नवाज शरीफ की क्या ड्यूटी है? एक सेकंड जरा थोड़ा सा रुक जाए ना, मैं आपकी बात करने दूंगा। 2018 में फिर RTS बनाना पड़ा कि ये लोगों के हाथ में नहीं देना, ठीक, तो 24 में भी हो गया भाई। जब आपने सिस्टम बना दिया, राणा आप साहब, एक्सेप्ट कर नहीं, ऐसे अब नहीं, आप नहीं, उसमें ऐसे ना दवाई की प्लीज ऐसे ना 100 mg की बजाय 200 mg पे चीख रहे हैं ना, बात तो ये है कि दवाई तो ली ना। सर वो इस दवाई को रोकने का तरीकाकार हमें डिस्कस करना चाहिए। भाईजान, सियासतदानों को सारे मुआविन हो जाते हैं, लोगों की ड्यूटियां सिर्फ दो, नहीं मैं सिर्फ दो जन। पहली बात तो ये है कि यार ये किसको किससे मिलाया जाता है, ऑरेंज को कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। बात है जी। दूसरी बात ये, वो जो बाईपास के बाद रेस्ट करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों उसने बाईपास के बाद डायरेक्ट कश्मीर चला गया, उसको रेस्ट करनी चाहिए। वो तो लाहौर उतरा था। 7 स्टंट, जीतने के बाद वो मुजफ्फराबाद जलसे पे गया। 7 स्टंट, 3 हार्ट सर्जरीज, 12 दवाइयां, 17 बीमारियां माशाल्लाह। और आज, अच्छा आज नवाज शरीफ की क्या ड्यूटी लगी हुई है?
उस दिन तो उनकी लगी हुई थी, बिलावल की भी लगी हुई थी, इमरान खान की। अभी अलीमा खान ने कहा मोदी के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। सर मैं उमर अयूब ने कहा इन्होंने सारे तेल पानी बंद कर दिए हैं। सर बात कर लूं? जी मैं भी उन्हीं को कह रहा हूं। जी आज की ड्यूटी लगी है उस कायदे इनकलाब। अच्छा, इन प्रॉब्लम ये है हमारे सीनियर्स का, इन्होंने नवाज शरीफ को पता नहीं समझा क्या हुआ है भाई। वो छोड़ गया है सियासत, फारिग हो गया, उसको पता चल गया कि मैं हल्के में नहीं जीता, मुझे अवाम ने नहीं वोट दिया, वो सख्ते से नहीं निकल रहा, वो उस कौम में से नहीं निकल रहा, उसका फारिग हो गया। ये अभी भी सर पे वो नवाज शरीफ जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया तक उन्होंने जफ्फी मारने वास्ते खड़ा सी और उन्होंने कहा पुत्र तू सही किया है और मेरी रोटी पहुंचती रही तेनू, मैं पाए तेनू खिलाए। कजाफी जब सड़क पे आया तो लोग मारने लगे, नवाज शरीफ ने कहा कि हुण तेनू समझाया नहीं सी। सदाम फांसी पे चढ़ लगे, वेखे अगे नवाज शरीफ साहब खड़े ने, तो उसने कहा कि अच्छा तेनू पता नहीं सी पागल दिया पुत्रा, तेनू क्या सी एक दिन ईद वाले दिन फांसी देंगे तेनू अगर याद होगा। ये बशार अल असद अभी रूस उतर ही था, आगे नवाज शरीफ खड़ा, तो उसने कहा हुण ठंड पैगी हुण आराम ही आप आए ले अंदर बह के खाने लेकिन हुण तेरा बुरा, यानी छड़ दियो यार उनके पीछा, छड़ दियो पीछा उनकी उस वक्त ड्यूटी। एक जुमले में ये बहस समेटी जा सकती है बेटी साहब, एक आपकी इजाजत से एक जुमले में ये बहस आमिर भाई से समेटी जा सकती है। आमिर साहब हमारे बहुत सीनियर है, जब बार बार ये कहते हैं ना कि उसका रास्ता निकालना है, कि वे आउट निकालना है, कि ये बार बार ना हो, बार बार ना हो, तो यार कभी बैठ के इस चीज के ऊपर भी बात कर लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी के साथ किसने किया था, उसके बाद काला कोट पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहन के कौन चला गया था, रास्ता जिन्होंने निकालना था। जुमले में बंद करता हूं। नहीं जी सर, खुद यूएई के महलों में पहले जनरल मुशर्रफ से मिलने आमिर भाई सुन तो ले, दोनों थैंक यू, सर सुन तो ले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सारे एक दोनों आमिर साहब यही कह रहे हैं, एक मिनट आमिर साहब यही कह रहे हैं, और यही कह रहे हैं इमरान खान यही कह रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। वो कहता था मैं ऐसा बेशरम वजीर आजम नहीं बनूंगा, वो वजीर आजम बना कि मेरी पॉलिसी। अच्छा, इसका मतलब है वो बेशरम थे, इसका मतलब बेशरम थे, एक सेकंड बात कर रहे हैं पीएम आजम साहब चले गए, इसका मतलब वो बेशरम थे। फिर उसने कहा कि हम तो उसको भी बेशरम नहीं कहते, जनरल बाजवा मानते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी जनरल बाजवा मानते हैं, और जब इक़्तिदार से गए मुझे तो कुछ करने नहीं देते। अच्छा, मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन यार चांद जुमले याद है रोटी को छोटी सर, करता हम था। तो आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं, भाई हम सब आपकी बात को एक जैसा गिन रहे हैं, आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं, सब एक जैसे नहीं कर रहे हैं, हम सब आपकी एक बात को जैसे सेकंड नहीं कर है। रहे जिसने हैं। 35 साल इस मुल्क को चीट किया वो एक जैसा कैसे तरह होता है? ओ भाई, उदैबिया, लजीजिया, फ्लैगशिप, लूटमार, जिस लूटमार के पहाड़ हैं वो एक जैसा कैसे हो सकता है? जिस फौज ने 2011 में उठा के लगाया था, वो भी भाग गई। इन्होंने सारी उम्र कोशिश की पहले कि नवाज शरीफ को कंधा दे, नहीं दिया जा सका, शहबाज शरीफ को जस्टिफाई करें, नहीं दिया। फिर इन्होंने अब कोशिश की कि सारे एक, ओ भाई नहीं सारे एक जैसे, एक जैसे होते तो आज वो बाहर होता, नहीं अगर वो चला एक जैसे होते तो आज वो दूसरी तरफ चला जाता बाहर तो फिर आप कह लेते, लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं आ रहा ना भाई, वो नहीं जा रहा बाहर। 18 में पाकिस्तान इमरान खान का नाम आते ही कौन लगती है? नवाज शरीफ के ऊपर क्या बात करते हैं? बोलिए बोलते ही नहीं, बोले अपना नहीं बोलिए। 2018 में और दोनों भाइयों को मुझे पता है अच्छा है, कोई मसला नहीं। मैं आपको 18 भाई जो आपकी तकलीफ है हम दोनों पे डिवाइड करें तो ज्यादा है। मैं बात क्या कर रहा हूं, निकल रही हैं वो भी लोग मैं बात क्या कर रहा हूं, बता आप कहां चले गए? जब ये जो आरटीएस का ड्रामा बना था ना, उससे पहले क्या हुआ था, एक लेटर निकला इलेक्शन कमीशन से, इस इलेक्शन कमीशन को बहुत याद करते हैं कि जो पोलिंग एजेंट है ना वो मोबाइल फोन नहीं लेके जाएगा अंदर। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। पोलिंग एजेंट वो होता है जो ऐसा समझे कि वो खुद इलेक्शन करा रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब अंदर ठप्पे लगे तो किसी के पास फोन नहीं। ओ यार क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा पोलिंग एजेंट, कौन सी पोलिंग इस भाई आपको तो यही लगेगा, 24 के अलावा तो याददाश्त ही नहीं है ना। भाई 78 सालों की बात कर रहा हूं भाई मंसूर साहब, मैं ये समझ नहीं सकता कि 24 का दुख जिनके अंदर इस हद तक सरायत कर चुका है कि ये तस्दीक और तंज में फर्क भूल जाते हैं, क्योंकि इनका गुस्सा है ना, जिसको जा जाके एक नाम ले लो उस तस्दीक पे चले जाते हैं, मजा आता है। मैं तो हंस के बात कर रहा हूं, मैं नहीं गुस्सा करता, मैं अपनी बात करता हूं। अगर हम ये, चूंकि साकिब साहब ने जो बात शुरू की थी ना कि जी हम हर दफा मेरे ऊपर रख के कही कि जी हर दफा हम ये कहते हैं कि जी ठीक कर लें, अच्छा मेरे ख्याल में आपको और हमें क्या करना चाहिए? गोलियां चलवाएं? हम क्या बात करेंगे? हम यही बात करेंगे कि ये सारे गलत हैं और उसमें सारे शामिल हैं, तो सबको बिठाएं। मैं तो स्टार्ट से 2024 के कह रहा हूं कि आप डी चौक में, जहां पे जलसे नहीं, वहां पे फौज, अदलिया, मीडिया, सियासतदान नहीं, आप लगाएं और मीडिया लाइव दिखाए, पीटीआई का आप डिबेट करें, बहस करें कि जी करना क्या है। जब 100 कुछ वो हो चुके हुए थे 2013 से 18 वाली में, आरिफ अलवी साहब उस कमेटी के मेंबर थे कि जी आपने इलेक्शन कैसे कराना है। आखिरी वक्त में शिबली फराज ने
परवेज रशीद से कहा लो जी हमें बाइकाट को कमा के हम साइन नहीं करेंगे जिस दिन एग्रीमेंट हो गया था कि आपने इलेक्शन कैसे कराने हैं। ठीक। उसके बाद पीटीआई अपने दौर में भी नहीं कर सकी। तो आपको कहीं तो करना है या फिर आप पीटते रहेंगे अगला इलेक्शन जब होगा। एक सेकंड हौसले से इससे ज्यादा बड़ी दुआ बड़ी जो है ना मंसूर भाई दुआ ने- उसमें भट्ट साहब, एक लगाई सेकंड, जाएगी एक क्षमा और दे के काम हो भूल गए। जाएगा। आमिर भी एक सेकंड अब हौसले से, आप बड़े भाई का बोलिए, रिक्वेस्ट, बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट भट्टी साहब। नहीं सर, एक सेकंड, अच्छा, बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट चलिए, है। बोलिए। आपने हुक्म दिया, मैं अब यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आपने कहा जी कि ये जब इनको रास्ता निकालना चाहिए, मैंने आपकी खिदमत में ये गोशगुजार किया कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक रास्ता निकला था, दोनों चीट कर गए उसमें आगे। इसमें मैंने आप पे तंज कहाँ पे किया? मैंने तंज नहीं मैंने कहा, आप पे तंज कहा। ना मैंने आपने कहा जी मेरी तरफ इशारा करके तंज किया। मैंने इस पे तंज नहीं कहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये रिकास्ट भी हो सकता है। मैंने ये कहा जो इन्होंने इशारा करके मुझे कहा कि जी हर दफा ये बात कह देते हैं सीनियर लोग, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब मेरे पास बंदूक है, इसके अलावा ये कहिए ना कि अपॉर्चुनिटीज आती रही, ये अब्यूज करते रहे, उसको मिसयूज करते रहे, इसको जाती फायदों के लिए यूज करते, ये कहिए ना नहीं दी। उसको। आमिर भी ये कहिए ना, मैं कह रहा हूँ नवाज कि शरीफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। एक बात की ना, नवाज शरीफ काला कोट चले गए, मैंने कहा उससे पहले वो मुशर्रफ से मिलने यूएई के महलों में चली गई, वो भी दोनों ने चीट किया, दोनों ने चीट किया। मैं मिसाल पे मिसाल दी और साथ ये कह रहा आसान हूं, लफ्जों फिर में इमरान खान ये मंसूर कह रहे थे कि मैं इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, वो भी बन गए। आसान अब लफ्जों इशू में। क्या है, जब तक आपस में नहीं बैठेंगे और आपको तीसरा बैठने भी नहीं देता तो बैठना तो पड़ेगा। ए गाल करो ना कि बैठ नहीं भट्टी साहब, सकते, भट्टी ये साहब, बात करें, सर, ये भट्टी बात साहब, करें, ये ये फैक्चुअल, अच्छा, ये भट्टी- fact भट्टी साहब कुछ कहना ये है। fact है। आसान लफ्जों में ये है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं ना, ये इनकी कहीं डीएनए करवा लें, इनकी किसी जिस्म के किसी हिस्से में जमहूरियत नहीं है। ये बदतरीन सिविलियन डिक्टेटर हैं। हमारे सीनियर ने हमारे सरों आप सबकी बात कर रहे हैं? जी सबकी A to Z, इसमें खान साहब भी शामिल हैं। सब के सब सबकी भाई। बात, जी। बेसिक बात ये है कि आप मुझे बताएं, ये इस काबिल है कि इनके नाम जमहूरियत, इनके साथ डायलॉग करो, किनके साथ डायलॉग करो भाई, आपस में डायलॉग किया था ना। और ये मिसाके जमहूरियत हुआ क्यों? क्योंकि दोनों इक्तदार से बाहर थे। ठीक। पहली बात ये है कि ये मिसाके जमहूरियत क्यों हुआ था? ठीक। एक इक्तदार में इन दोनों में से होता तो कोई नहीं होना था। इन दोनों ने आपस को क्या कहा था? अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, जर बाबा अली चारी चोर, मोदी का यार, और ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान पंजाब का, और दरिंदा नासूर। ये किसने कहा था? मैंने कहा था, इमरान खान ने कहा था। 80% मुकदमे एक दूसरे पे खुद बनाए थे। ठीक। तो ये इनके एक डंग टपाऊ मुहिम थी और दोनों ने मिसाके जमहूरियत किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ चीट किया, अब दोनों मिलकर तीसरे के साथ चीट कर रहे हैं और आप कहते हैं इनको जमहूरियत का नाम ठीक। करो। जब तक ये मौजूद हैं, ये मौजूदा हुक्मरान, आज लिख लीजिएगा मेरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब तक ये मौजूदा सियासतदान और हुक्मरान मौजूद हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हम पानी में भी डूबेंगे, गुर्बत में भी डूबेंगे, बेरोजगारी में भी डूबेंगे। ये अगर हमारे मसाइल ये नहीं है जो पाकिस्तान के मसाइल, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। भट्टी साहब, आपकी नज़र में ये तीनों पार्टियां फारिग, इसके हुक्मरान फारिग, ये जमहूरी डिक्टेटर हैं। आज भट्टी साहब के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर संभाल मतलब सलाहियत आपके हाथ में आ गई है। अब आज बताइए, आज से क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? सबसे पहले 5 काम क्या होने चाहिए, बताइए। शहबाज शरीफ मुझसे लायक है? नहीं, मैंने कब कहा है? शहबाज शरीफ, मुझे ईमानदारी से मैंने कहा है बताएं, शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और इज्जत दे, मुझसे लायक है? बिलावल भुट्टो साहब मुझसे लायक है अंग्रेजी के अलावा निकालने से? यार किस तरह की बात करते हैं, हमें मौके ही नहीं देते, ये हमें आने नहीं देते। चंद वो आप पे मिल के चीचो चीज गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, आपे आपे खाई तू खाई जाओ, मौका कहीं और लगा लेते हैं, मसला ये। भाईजान आप देखें ना, ये वही एस्टेब्लिशमेंट वाली बात कर दी ना। ये हैं वो आपके, ये हैं वो जराए जनाब स्पीकर जो जमहूरियत को पनपने नहीं देते। अच्छा, थोड़ा नवाज शरीफ अंदर आ गया, ये है वो जरा है। हाँ। और अगर मेरे असासे ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या? ठीक है, ठीक। अब कहना नवाज, अब बताइए 5 चीजें क्या करना चाहिए। भाई पहली बात तो जो पहला मेरा है वो है बेस्ट बल्दियाती निज़ाम। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम, इसमें बिला वो खौफो शफाफ मेरिट पे बल्दियाती निज़ाम। ठीक, ओके। सेकंड सर मेरा है कि इस मुल्क में कम से कम 30 सूबे होने चाहिए। सेकंड, इस मुल्क के सूबे, पंजाब के भी सूबे ज़्यादा होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के भी, सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी। ठीक। थर्ड भाईजान, जिस पे जो कोई भी इल्ज़ाम लगाए, ठीक, कोई भी इल्ज़ाम लगाए, कोई भी इल्ज़ाम लगाए। अभी अब बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म का देखा, इल्ज़ाम लगा था एक फ्लैट का, ठीक, जिसके बाद हमारी शबाना महमूद वज़ीर दाखिला बन गई। एक फ्लैट का इल्ज़ाम लगा कि टैक्स दिया मगर उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, उसने छोड़ दिया। ठीक। साडा जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी से वज़ीर आज़म। अच्छा,
तो क्या तीसरा होगा, इल्जाम लगेगा फिर उनकी क्या होगा तहकीकात? वो नाहल खत्म, आउट, इल्जाम लगने के ऊपर भी? आउट, जिस पे जो इल्जाम लगे खत्म, ये पूरी पौध खत्म, ये ऊपर वाली सारी लाट खत्म। नहीं, इल्जाम लगने के ऊपर, जी जी, चाहे वो सही है या नहीं है। हद हो गई, हमारे यहाँ गलत इल्जाम लगते हैं, वो तो भट्टी पता है साहब, ना। इस तरह ना करें, इस तरह बहुत से लोगों के ऊपर भाईजान, इल्जाम मुझे तो सियासत में लगते ही लगते हैं। भाईजान, मुझे आप वजीर आजम बना रहे हैं कि आपने खुद बनना है। आपको मैंने एडवाइजर रखा है, आप एडवाइस क्यों अब करते हैं? एडवाइस नहीं कर सकते, अब वो बन गए वज़ीर आज़म। अच्छा, मैं बनाते देता हूँ, मैंने एहसास हो रहा है मेरे को गलती हो गई। देखा, ये है अब आप एडवाइस नहीं कर सकते। ये है दुल्हन की वापसी। कितने हो गए काम? 3 सर, चौथा काम इस मुल्क का है फिर सब एक 26वीं यानी तरमीम भी रोल बैक करवा देना। सर 18वीं और 26वीं दो मनो, 18वीं भी गई। 18वीं और 26वीं यानी तरमीम नहीं, वो रोल सूबे बैक में करें, ऐसी ज्यादा बन ज्यादा जाएगा। बन गए, 30 18वीं और सूबे ज्यादा बन जाएंगे। और आखिरी बात, इस मुल्क की 3 चीज़ों पे मैं काम करूंगा ग्रास रूट से: इंसाफ, सेहत, तालीम। एजुकेशन। अब इसके लिए मुझे आपने देने हैं 10 साल। चलो चलो क्या, चलो क्या, मैं घरों जाके थोड़े वास्ते पराठा पका के बड़ा लिया के कोई देना? तुसी जमहूरी लीडर ही नहीं, निकले। 5 साल बाद ਤੁਸੀਂ इलेक्शन ਲਾਇਆ नहीं ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ इसका मतलब है 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 10 साल नहीं होंगे। ਹੁਣ ਰੱਜੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ओ भाई, इलेक्शन भूल 10 साल जाओ, इलेक्शन भी नहीं ये होगा। नहीं होंगे भाई। 10 साल आपने मेरे पीछे चलना है इस कौम के, और आप जहां जो भी ओहदा लेना चाहें। अच्छा, वैसे जिस किस्म के आपके ख्यालात है ना, मुझे ज्यादा फिक्र आपकी जान की होगी कि आप 10 साल निकाल भी एक मिनट अगर बस अल्लाह आपका भला करे। लाइटर नोट, ये यहाँ मैं लाना चाहता था, अल्लाह आपका भला करे। लाइटर नोट, अल्लाह आपका भला करे। वो फॉग में ना गाड़ियां जा रही थी किसी के पीछे, सारी लाइन में चलती चली, ब्रेक मार ली। उन्होंने कहा तुम हमें कहाँ ले आए हो? उन्होंने कहा मैं तो अपने घर आया हूँ। 10 साल ला दो। ठीक है। एंड पे जो है ना, वो अपनी ख्वाहिश। सर, आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, खुदा की कसम हम अपने घर आ जाएंगे। अगर मैं आ गया तो जमहूरियत के घर, वोट की इज्जत के घर, पार्लियामेंट के तकद्दुस के बगैर घर, किसी वोट के आजाद 10 साल। अदलिया के घर। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अपने हलके में हार जाऊं एक बूढ़ी औरत से, और नहीं, मैं आपको- मैं आके अगर आपको- मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बजट सेशन में छुट्टी ले लूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरे मुल्क में जंग लगी हो तो मैं जाके छांगला गली बैठ जाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर कि आपको मेरे मुल्क अपने लिए में 10 बारिशें साल और चाहिए सैलाब ना, हो तो मैं चुप करूं। अगर आपको अपने और मैं लिए 10 ऐसा नहीं साल- करूंगा फिर भी उसकी तारीफें करूं। अगर आपको अपने लिए 10 साल चाहिए ना, तो फिर दूसरा भी अगर 10 साल मांगेगा ना, तो फिर वो भी कहेगा सर, भाईजान, 10 साल- अगर भट्टी मांग सकता है अपने लिए 10 साल, तो फिर मैं भी मांग ये सकता आज का जो क्लिप है ना, ये आपका ये कोट किया जा रहा है, ये बार बार कोट ठीक हुआ है। करेगा। भाई, अगर भट्टी अपने लिए 10 साल भाई, मांग मैं रहा है कह रहा हूं, तो फिर दूसरों के लिए भी भाई 10 साल। 10 साल के बाद मैं मुल्क आपके हवाले करूंगा और कहूंगा मेरे इसकी हवाले डायरेक्शन करूंगा। सही है कि नहीं। जिसको देना चाहता है दे ले। अच्छा। हाँ, मुझे कोई नहीं, जरूरत मैंने नहीं। देना है, किसी और ने आई देना। हेट इक्तदार। अच्छा, ये 10 सारों को मैं 10 साल सिर्फ दो मुझे। अब वो बहुत भी शुक्रिया। आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी भाई साहब, थैंक यू। आमिर इलियास राणा साहब, इरशाद भट्टी साहब, हमारे नाज़रीन, एक थी वज़ीर आज़म, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हो सकता है कल को ये कभी इलेक्शन लड़ें, तो आपने इनका पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मंशूर सुन लिया कि इनके इरादे किस किस्म के हैं। आएंगे तो 10 साल के लिए आएंगे और फिर जाएंगे नहीं अगले 10 साल। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतने। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।